ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਸਮਾर्ट क्लासेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ एस्टेब्लिश ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। मतलब जिनको रिपीट करके बताना पड़ता है, तो ये डिवाइस ऐसा है कि जितनी बार मर्जी वो उसको रिपीट कर करके सुन सकता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈसेस ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। जो बच्चा बोल रहा है कर रहा है उसके बेसिस पर ये जो है बताता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। एकदम गेम्स के ज़रिए सिखाता है। 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। जो उसने ब्रेल सीख ली है, अब वो ब्रेल बुक्स अवेलेबल हैं, वो जब मर्जी पढ़े। वो नहीं स्कूल जा पा रहा, वो नहीं कुछ कर पा रहा, ओके, कई पेरेंट्स नहीं भेजते। हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको टीचर भी नहीं मिल रहा उस टाइम पे, तो वो अपने आप में एक टीचर है। उन बच्चों के लिए हमने ये एनी डिवाइस उनको दिलवाई है। ये हमारा इनिशिएटिव है। ये एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस है। तो बहुत सारी ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जो इनको पढ़ने के लिए चाहिए, विच आर नॉट अवेलेबल फ्री, तो उनको पढ़ने के लिए ये स्कैनर है। ते ए वी टी ए आर वो भी इस डिवाइस के ज़रिए सीख सकते हैं। तो जो हमारे सीनियर बच्चे होंगे उनको कॉन्ट्रैक्शन सीखने में आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा जो नई चीज़ें जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं कंपनी, वो ये है कि इसके ज़रिए मैथमेटिक्स भी ये सिखाना है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਬਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਤਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਸਮਾर्ट क्लासेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਉਹ ਏਜ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅ ਟੂਲ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫॉर ਥੀਸ ਬਲਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫॉर दैट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਕਅਪ ਮੈਟਰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ IDBI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਟ ਵਰਕਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਟਿਕਬਲਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਊਗਾ। IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ?
प्रशांत सेठी नाम है मेरा, मैं रीजनल हेड IDBI बैंक। जी। हमने यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के लिए यू स्कैनर्स दिए हैं। द टेक्नोलॉजी इज कि थ्रू दिस स्कैनर कुछ भी जो भी नॉर्मल अवेलेबल बुक्स हैं उनको स्कैन करके ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करते हैं वो। सो through this scanner student can read any of the book, newspapers or anything which is available in normal printout rather than in braille lip. So that is a very good thing for overall development of the kids of the school. जी सर, इसका और क्या क्या फ़ायदा है जो जो अगर देख नहीं सकता कोई वैसे? सी देखिए अभी जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑल द बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन ब्रेल। तो बहुत सारी ऐसे स्टडी मटेरियल्स हैं जो इनको पढ़ने के लिए चाहिए विच आर नॉट अवेलेबल इन ब्रेल, तो उनको पढ़ने के लिए ये स्कैनर हेल्प करेगा। जी। ठीक है, अभी वो बुक जो जैसे मान लीजिए मेडिकल की कोई बुक है विच इज़ नॉट अवेलेबल, देन स्टूडेंट कैन यूज द स्कैनर, convert the book into a audio book and study the book. So that is a benefit of this instrument. ठीक, थैंक Thank you. यू। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सर अवतार सिंह। अवतार जी कोई टाइप करके दिखा दो सब मैं कुछ। आपका नाम टाइप करके दिखाना। ठीक है। एक सेकेंड। तो ये तस्वीर है जिस ते कि अवतार जी अपना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है। ते A V जी T जी A जी। R। ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਬ੍ਰੇਲ ਚ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ बट ये इस टाइम ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ओके ठीक है। ਸੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਇਸ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਮੈਮ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਐਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਾਟ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਨੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਨ ਜੋਰਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं। मैम क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। परमजीत मैम, आज कितने डिवाइसेस लॉन्च किए हैं? 7 डिवाइसेस मिले हैं हमें, 7 डिवाइसेस लॉन्च किए गए हैं जी। और ये डिवाइस जो हैं ये विजुअली चैलेंज बच्चों को जो देख नहीं पाते हैं उनको ब्रेल सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अदरवाइज़ हमें टीचर चाहिए होता है जो ब्रेल सिखाए। और ये जो डिवाइसेस है ये हर एक एज के बच्चे को, चाहे कोई देख सकता है वो भी सीख सकता है, जो नहीं देख सकता वो भी सीख सकता है। तो ये ब्रेल अपने आप में जो ये डिवाइस है ये कंप्लीट टीचर है। ज़ीरो से लेके मान लीजिए नर्सरी का बच्चा है उसके लिए भी इसमें लेसन्स है, और उसके आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं ब्रेल की लर्निंग बढ़ती जाती है, ब्रेल के टाइप्स बदलते हैं, उस हिसाब से इसके अंदर पूरा सिस्टम सेट करके रखा हुआ है। और इसके साथ ये होगा कि अगर हमारे पास ये डिवाइस है तो हमारे बच्चों को उस वक़्त अगर टीचर थोड़ी देर पढ़ा के चला गया है, बता के चला गया है, वो उसको रिवाइंड कर के बार बार सुन के समझ सकते हैं। उसके लिए बहुत अभी जैसे 7 डिवाइसेस हैं, वैसे सर ने और भी कहा है आप ये यूज़ करें, उसके बाद और भी हम लगाएंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया है। और जिन्होंने इसमें सहयोग किया है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकेश जैन जी हैं, उन्होंने इसके लिए फंडिंग करी। IDBI बैंक वालों ने इसमें सहयोग दिया, फर्नीचर उन्होंने सारा अरेंज करना है। और इसके लिए जो बहुत विशेष बात है कि ये ऑपरेट करना बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
बहुत छोटा बच्चा भी सीख के इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग अभी हमें नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। हर एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंस्ट्रक्टर्स हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर इसका मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 महीने में हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं जो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं, मतलब जिनको रिपीट करके बताना पड़ता है। तो ये डिवाइस ऐसा है कि जितनी बार मर्जी वो उसको रिपीट कर करके सुन सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो ज़िला प्रशासन ने इसको प्रोजेक्ट उम्मीद का नाम दिया है तो बड़ा सटीक लगता है मुझे कि उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। जो समाज में एक विजुअली चैलेंज का एक जो इमेज थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता था अपने आप को बेचारापन दिखा के कि हम कैसे करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर वो ब्रेल नहीं आती उसको तो वो पढ़ा लिखा भी अनएजुकेटेड ही माना जाता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ है कि जो ब्रेल से बच्चों का मन हटना शुरू हो गया था, क्योंकि हमें आजकल ऑडियो बहुत कुछ मिल जाता है, तो ब्रेल सीखने में बच्चे कम इंटरेस्ट लेते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। इससे क्या हुआ है कि बच्चा कंपल्सरी एक हमारा सब्जेक्ट है ब्रेल, फर्स्ट में सेकंड में कंपल्सरी ही है। कई स्कूल्स इसको हटा चुके हैं, कारण है कि कई बार उनको ब्रेल इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता, कई बार बच्चे इतनी ज़्यादा पेंस नहीं ले पाते कि हॉस्टल में जाके नहीं सीखते। तो ये मेरा प्लान है वैसे कि हम आगे इसको हॉस्टल में भी इंस्टॉल कराएं। तो बच्चे जब यहाँ से चले गए हैं अपने स्टडी पीरियड में वो बैठ के इसका फ़ायदा ले सकें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इससे हमें उम्मीदें हैं कि जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाते, जैसे कुछ ऐसे मेरे नज़र में आए बच्चे जो मल्टीपल चैलेंज है जिनका मतलब चल भी नहीं सक रहे हैं और हियरिंग में भी है थोड़ा चैलेंज, लोकोमोटिव प्रॉब्लम है। तो उनके लिए ये है कि उनके हमारे जैसे स्कूल एजुकेशन ने क्या किया हुआ है कि जगह जगह ब्लॉक्स में रिसोर्स रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर डिफरेंटली चैलेंज बच्चे आते हैं। तो मेरा तो ये प्लान है कि हम वहाँ तक इसकी हम रीच आउट करें कि हर रिसोर्स रूम जो ब्लॉक्स में बने हुए हैं वहाँ पर ही हम इसको पहुँच करें। ब्रेल बुक्स तो पहुँचा दी जाती हैं पर ये सिखाने वाला कोई नहीं होता ब्रेल। इससे ये बहुत मैं उम्मीद रखती हूँ कि जहाँ तक ये पहुँच पाएगा डिवाइस, वहाँ हर जो विजुअली चैलेंज बच्चा है वो इसकी मदद से अपने आप को एजुकेट कर पाएगा। मान लीजिए उसने ब्रेल सीख ली है, अब वो ब्रेल बुक्स अवेलेबल हैं, वो जो मर्जी पढ़े, वो नहीं स्कूल जा पा रहा, वो नहीं कुछ कर पा रहा, ओके, कई पेरेंट्स नहीं भेजते। तो ये मेरे नज़र में बहुत एक अहम मोड़ है हमारे विजुअली चैलेंज लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा मैम, ये जो एनी डिवाइस आज लाए गए हैं बच्चों के लिए, तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज बच्चे सुन सकते हैं? देखिए अभी तक तो इंग्लिश है और हमने कल भी बात करी है, वो नेक्स्ट वीक तक इसमें पंजाबी इंस्टॉल कर देंगे। मॉड्यूल उसका पंजाबी आ जाएगा। ऐसे ही वो कह रहे थे कि जैसे जैसे डिमांड आएगी हमें वैसे वैसे हम इसमें और लैंग्वेजेस ऐड करते जाएंगे। अभी इंग्लिश है, या नेक्स्ट वीक में जब उनके ट्रेनर आएंगे बेंगलोर से आएंगे तो वो पंजाबी उस वक्त तक वो इंस्टॉल कर देंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿलेगी? इस वक्त मेरे नाल अमन जी जुड़ चुके हैं। सर, आप यहाँ बच्चों के लिए आप सहायता की, कैसे चलता है ये एनी डिवाइस? ये हमारे जो आदरणीय डिप्टी कमिश्नर हैं श्री जितेंद्र जोरवाल जी, ये उनका ही प्रयास था। तो उन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट उम्मीद के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अलग अलग तरीके के जो डिसेबिलिटीज़ हैं, आपको पता होगा कि कुल 21 तरीके के डिसेबिलिटीज़ होते हैं। उन 21 तरीके के हर डिसेबिलिटी के लोगों की अलग ज़रूरत होती है। जो जिसको दिखता नहीं है या फिर जो चल नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होती है।
इसको ध्यान में रखकर हमने एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया, प्रोजेक्ट उम्मीद। उस प्रोजेक्ट उम्मीद के तहत ब्लाइंड स्कूल में जो हमारे बच्चे देख नहीं सकते, उन बच्चों के लिए हमने ये एनी डिवाइस उनको दिलवाई है। ये हमारा इनिशिएटिव है। ये एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस है। आपको जैसे पता होगा, ब्रेल एक जो हमारी होती है जिसमें हमारे जो बच्चे देख नहीं पाते, ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो सीखते हैं। तो डॉट डॉट वाली जो होती है, बिल्कुल, तो जो उभरी उभरी होती है, अब उसको सीखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको कांस्टेंट टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। पर चूँकि हमारे पास बच्चे भी ज़्यादा थे और टीचर्स की हमारे पास उतनी ज़्यादा भी नहीं है, धीरे धीरे हम टीचर्स अब आ रहे हैं नए, तो हमने सोचा कि क्यों ना टीचर्स का लोड कम करके और ये भी किया जाए कि स्मार्ट तरीके से बच्चों को मज़ा भी आए, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के गेम्स हैं जिसके ज़रिए बच्चे ब्रेल सीख पाएँ। तो अगर आप देखोगे कि तो ये ब्रेल स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस है। बच्चे के कान में ये अभी स्पीकर से ये सुनाई दे रहा है, ये इसको डिक्टेट कर रहा है कि अब ये करो। ये स्लेट है, ये हम और आप समझ नहीं सकते। ये टाइपिंग कीज़ है, कीबोर्ड है इसका। ये नीचे इसका स्लेट है, ये स्लेट पे लिखते हैं। ये हमारा जो ब्रेल का जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ इस वाले डिवाइस से दिखता है, ठीक है। ये हमारी स्पीकर है। ये डिवाइस जो है, जो बच्चा बोल रहा है, कर रहा है, उसके बेसिस पर ये जो है बताता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। एकदम गेम्स के ज़रिए सिखाता है। तो इसमें ABCD कैसे लिखते हैं, अ क ख कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज़ ये बच्चे को सिखा सकता है। अच्छा, आगे जो कहा जा रहा था कि आगे और भी जो डिवाइस लाई जाएंगे, और भी कुछ टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी, ऐसी क्या क्या है और क्या क्या लाई जाएंगी इनके लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अभी ये है हमारे लिए कि ये जो डिवाइसेस आ गए हैं, इसकी ट्रेनिंग हम 4 से 5 फरवरी के आसपास हमने ट्रेनिंग रखनी है। जो कंपनी है थिंकरबेल लैब्स, जो एकमात्र कंपनी है दुनिया में जो ऐसे डिवाइस बनाती है, तो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग रखी है। तो पहले हमारे टीचर्स ट्रेन होंगे कि डिवाइस को ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे बच्चों ने तो अपने आप चालू करके शुरू भी कर दिया, बट हम चाहते हैं कि ऑफिशियली भी, एक फॉर्मली भी हमारी ट्रेनिंग, सारे फीचर्स इस डिवाइस में, बहुत फीचर्स हैं, सारे फीचर्स हमारे टीचर्स को पता चल जाए और टीचर्स के ज़रिए फिर हमारे बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। तो ये हम ट्रेनिंग कराएंगे 4 से 5 तारीख के बीच में। उसके बाद हमारा जो मेजर फोकस ये है कि इसका कंटेंट अभी इंग्लिश और हिंदी में है। तो DC साहब जो हमारे जितेंद्र सर हैं, उनका ये था कि हमें कंटेंट पंजाबी में चाहिए। सो वी आर गेटिंग दिस कंटेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू पंजाबी। उसका ट्रांसलेशन का काम जो है हम जल्दी शुरू करके उसको पूरा करें, ताकि पंजाबी भी हमारे बच्चे सीख पाएँ जी, और लैंग्वेज सीख पाएँ। जी। हाँ, तो इसमें इंग्लिश ऑलरेडी है, हिंदी ऑलरेडी है, बिकॉज इन्होंने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल को ध्यान में रखकर बनाया था। तो इंग्लिश हिंदी में तो ये डिवाइस अभी भी काम कर रहे हैं, बट इसके पंजाबी वर्जन पूरा कंटेंट तैयार करना है, बिकॉज ये पूरे नॉर्थ इंडिया में पहला है। देयरफॉर इन्होंने अभी तक पंजाबी में कंटेंट तैयार नहीं किया था, तो हमें पंजाबी में ये कंटेंट तैयार। अच्छा, इन बच्चों को और क्या क्या इससे सीखने को मिलेगा? तो इसमें देखो, सबसे पहले तो गेम्स है। इसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो स्टैंडर्ड ब्रेल आप सीखते हैं, जिसमें नॉर्मल शुरू में सिखाया जाता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मतलब आप जब बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट लिखना होता है, तो ब्रेल क्या है कि आपको अगर एक छोटा सा शब्द भी लिखना है तो उसके काफ़ी सारे डॉट्स बनाने पड़ते हैं। पर अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन सीख लेते हो तो आप बहुत बड़े, जैसे आपका शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होता है जिसमें आप शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी लिखते हो, तो ब्रेल में भी कॉन्ट्रैक्शंस होता है, एक तरीके का शॉर्ट हैंड होता है, उसमें कंटेंट को छोटा कर देता है। तो वो सीनियर बच्चे सीखते हैं, मतलब वो शुरू के क्लास 5 तक के बच्चे नहीं सीखते, उसके बाद के बच्चों के लिए होता है कॉन्ट्रैक्शंस, तो वो भी इस डिवाइस के ज़रिए सीख सकते हैं। तो जो हमारे सीनियर बच्चे होंगे उनको कॉन्ट्रैक्शन सीखने में आसानी मिल जाएगी। इसके अलावा जो नई चीज़ें, जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं कंपनी, वो ये है कि इसके ज़रिए मैथमेटिक्स भी ये सिखाना शुरू करेंगे। उसका सारा अपडेट हमें आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए हमें अलग से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपके पास डिवाइस देख रहे हो, ये हमारा एक लोकल यहाँ पे नेटवर्क बना देता है। ये वहाँ जो बैंगलोर की कंपनी है उसके सर्वर के साथ ही जुड़ा रहेगा, तो ये लोकल सर्वर का काम करता है। ये केवल इतने के लिए इंटरनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी ये इंटरनेट से बगैर चलता है, ठीक है। तो इंटरनेट से ये कनेक्ट होते ही लोकल सर्वर से वहाँ से जो भी अपडेट्स होते हैं हमें मिल जाते हैं, और फिर ये डिवाइस हमारे ऑपरेट हो जाते हैं। अच्छा सर, अमन जी एक होर गल दसो कि इत्थे इहदे डिवाइस दे विच किहड़े-किहड़े ऐसे सब्जैक्ट ने जो ये सीख पा रहे हैं? तो सब्जेक्ट जैसे मैंने बोला, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, ठीक है। लैंग्वेज में आपका जो भी लैंग्वेज आप कर लो, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बार जब इसमें पंजाबी कंटेंट आ जाएगी तो इसके अंदर जो डिवाइस जो बोल रही है बात, वो भी जो है ना, वो पंजाबी में भी आ पाएगा। तीन लैंग्वेज? हाँ, ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਮਨ ਜੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਟਨ ਦੱਬਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਐਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਮ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।